So first we'll start with the definition part of Laplace transformation. So let me tell you what will happen in this. Okay, so you'll be having input function. Okay, so that input function will be denoting by f of t. F of t समझता है ना क्या होता है? Yes, It will be a function in terms of t. है ना? Function रहेगा जैसे sin x रहता है, cos x रहता है, e raised to h रहता है, logarithm functions रहते हैं. But इधर हम क्या डिनोट करें f of t से? So function will be in terms of t. Function of t. Okay. Then ये आपका इनपुट है, दिस इज योर इनपुट. ठीक है, इस पे हम क्या ऑपरेट करेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज ये एक सिस्टम है और एक फैक्ट्री है. ओके, तो दिस इज, इस पे हम क्या ऑपरेट करेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये इनपुट फंक्शन इस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आएगा. ठीक है, ये सिस्टम के अंदर आएगा. अंदर आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा. वो आउटपुट क्या होगा? दैट आई विल टेल यू व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन. Did you understand what is going to happen? Because transformation is there, no? Something is getting transformed. Okay, and what that something? This is m something. The okay input. आपका input function क्या? F of t. So this is your input function, which is f of t. It will go under Laplace transformation, and it is going to give you output. वो output क्या होगा? That I'll tell you when I will give you the definition. समझ में आया कि Laplace transformation क्या करने वाला है? कोई चीज रहेगा उसको ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, so that what is that thing? It is f of t. So f of t is your input function. So I will say that this f of t is defined for only positive values. Okay, well, positive and zero. Okay, that is it is defined for non-negative values. Non-negative में क्या हो जाता है? Zero भी आ जाता है और positive भी आ जाता है. Okay, so here is your function f of t, which is defined for zero and greater than zero. Then Laplace transformation of f of t is denoted by, हमें से ट्रांसफॉर्म करना है तो Laplace transformation of f of t will denote by this L of f of t. क्या मतलब है इसका? बताओ, what is the meaning of this? Laplace transformation. Yes, Laplace transformation of f of t. Okay, तो ये हमारा f of t है. इसके आगे अगर मैंने L लगा दिया, मतलब इसके ऊपर ये फंक्शन, ये फैक्ट्री क्या हो रहा है? ऑपरेट हो रहा है, या फिर ये सिस्टम ऑपरेट हो रहा है. तो क्या होगा? क्या मतलब लाप्लास ऑपरेट किया, मतलब क्या ऑपरेट हो रहा है इस फंक्शन पे? तो ये है इसका फॉर्मूला. इट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. So this is the formula, students. तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन पे ऑपरेट करोगे तो इट गोज अंडर दिस कैलकुलेशन. ओके, इसके ऊपर इंटीग्रल ऑपरेट होता है, which is e raised to minus st into f of t dt. Now pay attention, what you need to understand over here, the two variables s and t. Okay, I'll just ask you one thing. ये जो लिमिट आपने लिखा है इंटीग्रल का, ये कौन सी वेरिएबल का होगा? s या t का? t का होगा. T का. Sorry, t. You all said t, right? Yes. Okay, anyone else would like to answer anything? Because we are starting with the fresh unit, I think you all should pay attention to this thing. And this is very easy and very logical. You will love it if you understand it. What did I tell you? That there are two variables. अगर हम फॉर्मूला देखें, हमारा फॉर्मूला क्या? e raised to minus st into f of t. f of t तो हमारा इनपुट फंक्शन ही है, उसके साथ जस्ट हमने क्या मल्टीप्लाई किया? e raised to minus st. So there are two variables, एक s है और एक t है. तो ये जो लिमिट है इंटीग्रल का 0 to infinity, किसका लिमिट है? वेरिएबल s का या वेरिएबल t का? सो प्रद्युमन एंड आई थिंक नीलेश या प्रतीक में से किसी ने आंसर किया है t. प्रतीक ने आंसर किया है कि दे आर लिमिट ऑफ वेरिएबल t. बाकी सबका क्या आंसर है? इथान, साकिब, वैष्णवी, सानिका is also saying कि वेरिएबल t का लिमिट है वो. ओके, सुमित, what do you think? किसका लिमिट है वो? ओके, व्हाई डिड यू ऑल थिंक कि ये t का लिमिट होगा 0 to infinity? D of t. D of Because t की we वजह are से. dt, because we are integrating with respect to variable t. ये कैसे पता चला कि with respect to t integrate करें? dt दिख रहा है, dt. dt. So dt tells us कि हम with respect to which variable we are integrating. Since we are integrating with respect to variable t, so these are limits of variable t. I hope this is clear. So but variable s भी तो है, उसका क्या होगा? So 20 थिंग्स की फाइनल आंसर जो रहेगा उसमें s प्रेजेंट ही रहेगा, बिकॉज ये जो लिमिट है वो इंटीग्रेट करने के बाद हम पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ t. But in place of s, we are not going to put anything. Okay, s will remain as it is.
Are you understanding what I'm saying? अरे S है क्या मैम? It's a variable. ठीक है. So when you will integrate it, so you are going to put the limit in place of t. So t replace हो जाएगा, s will remain as it is. तो आपको जो final answer रहेगा उसके अंदर s present रहेगा. So therefore, तो जो final answer जो भी मिलेगा that will be in terms of s. So that I'm denoting here by f of s. So देखो आपका इनपुट क्या था, it was of variable t, but अब जब आपको फाइनल आंसर मिलता है तो आपको उसमें वेरिएबल क्या आ जाता है, s हो जाता है. So t got transformed to s. तो जो आपका जो आउटपुट में आपको जो बता रही थी इधर क्या मिलेगा आपको, it will be f of s. Okay, capital F of s से हम डिनोट करेंगे. So don't worry how it is going to happen, that you will see when you will when I will show you the Laplace transformation of some standard function. Definition clear है, सिर्फ definition है, सिर्फ formula है और कुछ नहीं. What is the Laplace transformation of f of t? It is integral from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. And जो final answer रहेगा that will be your f of s. So basically आपका क्या रहता है, input function रहता है f of t, इस पे हम Laplace ऑपरेट करते तो हमको आंसर क्या मिल जाता है, f of s. तो ये f of t से f of s आने का जर्नी क्या है, ये फॉर्मूला है. ये क्लियर है आप सभी को? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद Yes रखना है. ma'am. Yes, ma'am. Laplace transformation of f of t क्या देता है आपको, f of s. Now we'll see Laplace transformation of some standard function. Okay. So just put the heading Laplace transformation of standard function. So pehla function here I am taking Laplace transformation of some standard function. The first function here I am taking 1. ये भी 1 is a constant function, no? f of t की जगह मैंने क्या रखा, 1. 1. ओके, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी दे सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि मतलब आई फील की यू शुड नो कि Laplace ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे वर्क कर रहा है. सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल कि Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होता है. अदरवाइज आई वुड हैव गिवन डायरेक्ट फॉर्मूला आल्सो फॉर दिस, बट विल शो यू द कैलकुलेशन आल्सो. So what do we know by definition of a Laplace transformation? First I'll write down the formula because मुझे इसका Laplace transformation निकालना है. Okay, so I know that Laplace transformation of function क्या होता है, it is, बताओ फॉर्मूला क्या है. Integration of 0 to infinite. Yes, integration from 0 to infinity e raised to minus st E raised to into minus f. st into f of t dt. Correct. Now you put f of t की जगह पे 1. Yes. हमें Laplace transformation of 1 निकालना है, तो हमारा इनपुट फंक्शन क्या है, 1 है. So let's see what will happen. 0 to infinity e raised to minus st into 1. Correct. Yes sir. So for Yes, understood to ma'am. all of you. Now 1 से अभी किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है, इसमें कोई इशू नहीं है. What is the integration of e raised to minus st with respect to t? अब ये आंसर करो तो आप जीनियस हो. e raised to minus st का इंटीग्रेशन क्या होगा? किसी को भी नहीं पता, डोंट डिसअपॉइंट मी नाउ. ओके, Ma'am, e raised to minus st e raised to minus हाँ, st वही होगा. divided by minus. divided by t. who answered this? It was other than Pradyuman. हाँ मैं नहीं था, वो कोई और था, मेरे को पहले बता रही थी. Sakib. Yeah, very good, Sakib. You answered correctly because we know that integration of e raised to x is e raised to x. But what about integration of e raised to ax? इसका फॉर्मूला क्या होता है? It is e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही रहेगा, but x के कोएफिशिएंट्स हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. ओके, so that we are going to apply since we are integrating with respect to t, तो t का कोएफिशिएंट्स आप डिवाइड करोगे. You getting my point? Harshali, ma'am. you sure that it will be s and not minus s? What is the coefficient of t over here? It is minus s. So integration of e raised to minus st will be e raised to minus st and coefficient of t is minus s, so you will divide it by minus s. ये कितने लोगों को समझा इंटीग्रेशन पार्ट? समझा.
ओके समझा मैम। ओके ओके। ना अभी क्या करेंगे हम, विल पुट द लिमिट ठीक है, -1। लिमिट्स पुट करेंगे ना, ये जो लिमिट है किसकी जगह पे पुट करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नो नो नो, टी की किसके जगह, प्लेस पे? टी की जगह पे पुट करोगे तो एस की जगह पे तो कुछ नहीं पुट करोगे, तो एस हम बाहर ले लेते हैं। एस वैसे ही -1 एस कांस्टेंट, मतलब -1 एस, आई टुक इट आउट। नाउ आई विल पुट इन प्लेस ऑफ टी। सो अपर लिमिट पहले पुट करते तो इट विल बिकम ई रेस टू माइनस इंफिनिटी, बिकॉज इंफिनिटी से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इंफिनिटी होगा ना, एस इंटू इंफिनिटी है, ठीक है। यस मैम, माइनस ई रेस टू क्या हो जाएगा, टी की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये जगह ई रेस टू 0। नाउ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई रेस टू माइनस इंफिनिटी? बताओ बताओ। अच्छा ये बताओ ई का वैल्यू कितना होता है? मैम 2.73 समथिंग होता है, ठीक है। 2.73। अब ये ई रेस टू माइनस इंफिनिटी है, ठीक है। ई रेस टू माइनस इंफिनिटी आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन ई रेस टू इंफिनिटी। यस मैम, यस और नो? हाँ, अभी Yes, ma'am. ई का वैल्यू Yes, 2 ma'am. पॉइंट समथिंग होता है, अभी 2 पॉइंट रेज टू इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा वैल्यू होगा कि नहीं? यस तो लेट Yes, इट बी ma'am. दैट बिगर वैल्यू इज इंफिनिटी, ओके। एंड डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वैल्यू रहता है, वैल्यू उतना ही क्या होता है? अगर उतना मैं ही इसको वो सॉल्व मतलब करूं, जीरो हो जाता है, मतलब 0 हो उतना ही कम जाता है, होता राइट? रहता है न्यूमरेटर। करेक्ट। डिनोमिनेटर में जितना बड़ा वैल्यू, वो वैल्यू जो भी टर्म है, ये टर्म क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। तो सिंस इट इज अ वेरी बिग वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, तो उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। सो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो यू शुड रिमेंबर दैट ई रेज़ टू माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है? इट इज 0। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया 0, ये ई रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। तो आपको फाइनल आंसर क्या आता है? 1 अपॉन वन s। तो कैन यू सी वन फाइनल अपॉन एस। आंसर में s प्रेजेंट है? So that is why we यस denoted by f of s, capital F of s, because final answer में s present है। तो हमको क्या मिला? That Laplace transformation of 1 क्या मिलता है हमें? It is 1 upon s. So this is your first function. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, that Laplace transformation of 1 क्या होता है? It is 1 upon s. ठीक है, ये क्लियर है? यस तो हम Yes, आगे मैम, बढ़े, Yes, समझ में आया? मैम. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ बोलो। S का वैल्यू नहीं होता. वो लेटर ऑन पार्ट में हम देखेंगे कि एस का वैल्यू अगर पुट करने का कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो विल सी, ओके। नाउ नेक्स्ट फंक्शन वी विल टेक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to at। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें भी बहुत बार यूज करेंगे, जैसे 1 यूज करते हैं बहुत बार, ये भी बहुत बार यूज होगा। So what is the Laplace transformation of e raised to 8 let us find out that. So first I will write on the formula of Laplace transformation. So what is the definition of Laplace transformation? Integral from 0 to इंटीग्रल infinity फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी Infinite. e रेज़ टू माइनस E एस raised टी to minus st f f ऑफ of t t dt. इनटू t। करेक्ट। नाउ यू पुट f of t की जगह पे क्या पुट करेंगे? हमें किसका लाप्लास निकालना है? e raised to 8t का। So integral from 0 to infinity e raised to minus st f of t की जगह पे रखेंगे e raised to 8t। ठीक है, चलो अभी इसको आगे सॉल्व करें। क्या करोगे अभी आप? बिफोर मी एक्सप्लेनिंग यू ऑल, व्हाट डू यू थिंक व्हाट यू शुड डू फर्दर? डोंट टेल मी यू इनटू वी रूल, सभी के सभी को 0 मार्क्स दूंगी अभी मैं। बात है u इनटू v रूल यू इनटू वी रूल लगाएंगे प्रद्युमन? नहीं लगाएंगे, नहीं बोला है मैम, अच्छा अच्छा, फिर क्या करेंगे आप? दोनों सेम है, वो कैसे करें? So since base are same, so power क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ऐड by हो law जाता of है। indices, so it will become e raised to minus st plus at. Okay, यस मैम, 0 to Yes, ma'am. infinity. Now what is common? You can see I'll take minus also common. There's a T. purpose. हाँ, and t is also common. So minus भी common लिया मैंने, t भी common लिया, तो first term में क्या बचा फिर बताओ? Yes, एस minus a. Yes, minus a. Absolutely right. s minus a बचा। Very good, smart हो गया तुम लोग सबके सब। So minus I took it out. So जो plus रहेगा वो minus हो जाएगा, जो minus है वो
प्लस हो जाएगा। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, तो इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा ये बताओ। e raised to minus st का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to e raised to minus minus s s minus minus a at upon yes upon s minus 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 s minus minus a. वेरी गुड वेरी गुड। यू नो t का जो कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं, t का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस ऑफ s माइनस a, limitation से 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, Inf- तो अभी क्या बाहर रखोगे? कांस्टेंट्स क्या है? 1 वी आर upon गोइंग टू पुट minus s मतलब ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, दिस आई विल टेक इट आउट। same सो नाउ अभी पुट करेंगे लिमिट इन प्लेस ऑफ t, तो दिस विल बिकम e रेज़ टू माइनस, ना स्टूडेंट्स ये s माइनस a है, ठीक है, s माइनस ऐसा है, ठीक है। अभी t का वैल्यू में क्या पुट कर रही हूँ बच्चों? इन्फिनिटी पुट कर रही हूँ, ठीक है। Infinity. नाउ yes हाँ ma'am करेक्ट। अभी इसको e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी होने के लिए ये s माइनस a क्या होना चाहिए? अगर ये नेगेटिव हो गया तो s माइनस a, अगर नेगेटिव हो गया तो तो वो तो गलत हो जाएगा ना हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। s माइनस a नेगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, नो, e रेज़ टू इन्फिनिटी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय Yes, पॉइंट? ma'am. अगर समझे नहीं मैम देखो देखो मैं क्या देखो एक सेकंड में, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये s माइनस a ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर भी अगर नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, लेट इट बी, नो, कुछ भी हो हाँ सकता है ये। सो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये तो नेगेटिव क्या ओके हो ओके जाएगा? यस हाँ, तो मैम e रेज़ टू इन्फिनिटी आ जाएगा, तो e रेज़ टू इन्फिनिटी क्या होगा? इट विल बी अ वेरी बिग नंबर, इट वोंट बी डिफाइंड, वेरी बिग तो फिर नंबर वो इट। वापस जीरो नहीं e ना ना raised ना, to जीरो infinity कैसे नहीं होगा? e रेज़ टू इन्फिनिटी विल बी वेरी बड़ा हो बिग जाएगा। नंबर, बट आई वांट वो बड़ा माइनस हो इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी होने के लिए s माइनस a को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। ये क्या होना यस चाहिए? मैम पॉजिटिव, सो दैट कि ओके ये क्या हो जाए? e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। सो आई विल हैव टू पुट वन कंडीशन दैट s माइनस a इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट है ना? समझा ना क्यों s माइनस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? अगर वो यस भी मैम समझे नेगेटिव Yes. हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन e रेज़ टू इन्फिनिटी विल बी अ वेरी बिग नंबर, इट वोंट बी मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई e रेज़ टू इन्फिनिटी, और ये लोअर लिमिट जो 0 है, 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होता है, उसका कुछ इश्यू नहीं है। ऑल्सो आई हैव टू मेंशन दैट s माइनस a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 अपॉन s माइनस a, इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आता है? 1 upon s 1 upon s minus a ये आपका f of s है। So see, pay attention to what is happening over here. So it was Laplace transformation of e raised to at, ठीक है, तो इसका आपको लाप्लास क्या मिला? इट इज 1 अपॉन s माइनस a। तो जो ये a जो है, ये a कहाँ से आया? जो एक्सपोनेंशियल में t का कोएफिशिएंट था। फॉर एग्जांपल इसको आप कैसे यूज करोगे? देखो आपको ऐसा आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to 3t, तो इसका आंसर क्या बताओगे? बताओ, व्हाट इज 1 लाप्लास upon ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ? s minus 3. yes, it is 1 upon s minus 3. Getting my point? yes ma'am Then what is Laplace transformation of e raised to 4t? 1 upon s minus 4 4। समझ में आ रहा है कैसे यूज करना होगा? बिकॉज आपको अगेन एंड अगेन e raised to 80 नहीं देंगे, आपको ये a का वैल्यू दे देंगे, तो यू डोंट हैव टू फॉरगेट द फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यही रहेगा 1 अपॉन s माइनस a, बस a का वैल्यू क्या होगा? चेंज होता रहेगा। सिमिलरली यू कैन हैव नेगेटिव आल्सो ना, फॉर्मूला नंबर 3। अगर आपका f of t ऐसा रहा, ये इट इज लेफ्ट ऑन यू, इसका फॉर्मूला खुद निकालोगे। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका लाप्लास क्या मिलेगा आपको। तो इसका आप जब लाप्लास निकालोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन s प्लस a। समझ में आया? तो Yes, जब ma'am. इधर Yes, ma'am. नेगेटिव रहेगा कोएफिशिएंट तो आंसर आता है प्लस a। ओके, सो जरा बताओ, व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस 2t? 1 upon s plus 1 upon s plus 2. वेरी गुड। व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू माइनस हाफ t? 1 1 upon upon s plus plus half. यस, वेरी गुड। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है? yes ma'am ठीक है, सो तभी तक 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, e raised to at and e raised to minus at। चलो बताओ, व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1?
1 upon वन s. अपॉन एक्स। One वन upon अपॉन S. एस। ये सब रहना चाहिए आपको, फटाफट आना चाहिए, बिकॉज हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना, ऑल दीज फॉर्मुलास वी आर गोइंग टू यूज इट। ये बेसिक्स नहीं पूछेंगे आपको, इसको यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at, जो बहुत है ना, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत पूछता है। इसी तरह हमें लाप्लास भी निकालना होगा sin at एंड cos at का। तो sin at का मैं आपको बताती हूँ, cos at आप मुझे बताओगे कि आपको फॉर्मूला क्या मिल रहा है। हाँ बोलो, क्या पूछना है, नीलेश बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग खाली मतलब वैल्यू याद करना है बस ना। यस यस यस, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है, व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to -at, तो फॉर्मूला याद रखो। उस ये मतलब ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम की बात ना भी करूं मैं, आगे आगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसमें सब फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। So let us find out sin 80 का, okay? So I'll be explaining all for sin 80 and you all will be doing for cos 80, okay? So I'll just एक second. So but मैं sin 80 ना थोड़ा easy way में करूंगी, ठीक है? I'll not go by usual method. Why? Because मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e raised to 80 और e raised to -80 पता है। अब बोलोगे मैम इसका क्या कनेक्शन है sin 80 से? Is there any connection with it? What is sin theta in terms of exponential? It was e raised to I E theta, raised to I theta minus I theta upon, correct? No? याद आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. हाँ, so अभी थीटा की जगह इधर क्या है बच्चों, बताओ? 80. 80 80 है, तो therefore sin 80 क्या हो जाएगा? E raised to I80 Yes. minus E raised to 80. minus Minus upon 2i, correct? 280. ठीक है? Oh, हाँ, Now you take Laplace on both the sides. Let's see what will happen. Now take Laplace on both the sides. So Laplace of sin 80, Laplace of e raised to I80 minus e raised to minus I80 upon 2i. Now अभी 2i तो कांस्टेंट है ना, उसको हम बाहर ले सकते हैं। So 1/2i बाहर आ गया। फिर हम क्या करेंगे, लाप्लास हर एक टर्म पे ऑपरेट करेंगे, इस पे भी ऑपरेट करेंगे और इस पे भी ऑपरेट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो लाप्लास ऑफ e raised to I80 ब्रैकेट क्लोज माइनस लाप्लास ऑफ e raised to minus I80। कुछ समझ रहा है क्या क्या करेंगे अभी? Now what is Laplace of देखा this? था Yes. So इसका क्या हो जाएगा लाप्लास? 1 upon I minus 80. s minus a था ना, e raised to 80 का फॉर्मूला क्या था? s minus a था। a was the coefficient of t, तो s minus t, t का कोएफिशिएंट क्या है ये? A. What is it? A. I a है भाई, a कैसे है? t का कोएफिशिएंट क्या है? I आइए ठीक है, माइनस 1 अपॉन, इधर क्या हो जाएगा? s एस प्लस I. प्लस आई प्लस all of आई। you understood? Okay, कैसे मैंने ये यूज किया? all of you understood? So what did I do first? yes ma'am समझे sin थीटा का फॉर्मूला लिखा, देन थीटा को sin theta रिप्लेस का किया, यस, और थीटा को रिप्लेस किया 80 से। देन आई टुक लैप्लास ऑन बोथ द साइड्स, मुझे लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल पता था, इसलिए आई एम यूजिंग दिस मेथड टू गेट लैप्लास ऑफ sin 80। I'll just cross multiply to get the final formula for this. Cross multiply करो, s plus i a, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। अपॉन नीचे क्या होगा, ये s minus i है इंटू s plus i है। कुछ फॉर्मूला पता है इसका? प्लस माइन यस मैम। तो क्या हो जाएगा, ये 10 s and s will get cancel, क्या हो जाएगा 2 times i a हो जाएगा। नीचे क्या में बनेगा फॉर्मूला?
S square S minus square minus IA. A square I minus square. square. ये करेक्ट है, आई स्क्वायर आई, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 2i कैंसिल हो रहा है, a अपॉन एस स्क्वायर आई, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होता है -1 और माइनस -1 ऑलरेडी इधर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। प्लस समझ A में आया square. फॉर्मूला? तो ये मिला हमको फॉर्मूला फॉर साइन 80। तो क्या मिलता है फॉर्मूला फॉर साइन 80? इट इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये a कहाँ से आया, जो साइन का साथ जो रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ t वो आप लिखोगे इधर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कैसे यूज करेंगे। सो आपको आएगा लाप्लास ऑफ साइन 3t, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ बच्चों जल्दी। 3 upon 3 S upon square plus S 3 square square plus मतलब 3 9. square. करेक्ट, ओके। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 5t, 5 upon S 5 square plus upon S square 25. plus 25. okay, so I hope you are using it and you will not forget, when we'll do problems on this, okay? So ये सब याद रखना है, ठीक है? अगर आपको ये समझा है तो just tell me लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 क्या मिलेगा आपको, come on, will you all be able to do it? cos थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? cos थीटा क्या होता है बच्चों? E raised to I theta plus E raised to minus I theta upon 2i. अपॉन 2, चलो, और नहीं 2i नहीं रहता, 2i सिर्फ साइन में रहता है, cos में 2 रहता है, ओके? चलो अभी ये मैंने फॉर्मूला भी दे दिया है, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस थीटा बाय 80 एंड लाप्लास लो एंड इसको सॉल्व करके बताओ मुझे लाप्लास ऑफ cos 80 कितना मिल रहा है आपको? विल यू ऑल डू दिस? Yes, करते हैं। ma'am. चलो Yes. ओके, या आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। Now next function I'm talking about, function number 6, f of t equals to hyperbolic sine of 80. This is also very important function, Laplace of sine, hyperbolic sine of 80. Now इसको कैसे करेंगे, इसका कैसे लाप्लास निकालेंगे, किसी को कुछ आइडिया है? Do you know anything in terms of hyperbolic in terms of exponential? What is it? It is e raised to x minus e raised to minus x upon 2. अभी निकाल सकते हो आप? Yes. आपको x की जगह पे इधर 80 रखना है। 80 के रखना है। Yes, चलो, come on, do this. माइनस a अपॉन में
a square minus a square. माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी क्या बोलिए, Minus a divided by माइनस ए तो नहीं आएगा, जस्ट चेक इट अगेन, A upon a square minus a square. a upon a square minus a square, that's correct. Who else has got the same? Harshini has also got the same, very good. Shaki Fakir has also got the same, very good. Himanshu, Manish, very nice, very nice. Similarly, I'll calculate for hyperbolic cosine of 80. So ये क्या होता है? It is, what is hyperbolic cosine of 80? Do you all know any formula? E raised to x plus e raised to minus x upon 2. चलो इसका निकालो लाप्लास और बताओ कितना आ रहा है. मैम वही एस ए की जगह एस कर दो. a की जगह पे s कर देंगे. ओके, सो लाप्लास ऑफ cos h80 is equals to s upon s square plus minus a square. सो कुछ डिफरेंस लग रहा है ये नॉर्मल साइन और कॉस और ये हाइपरबोलिक साइन कॉस में? फॉर्मूला ऑलमोस्ट Yes. सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है. किसके केस में? हाइपरबोलिक के केस में. और नॉर्मल के केस में क्या आएगा, सर्कुलर फंक्शन के केस में क्या आएगा, प्लस आएगा. ठीक है. so far what we saw, Laplace transformation of 1 कितना क्या होता है, it is 1 upon s. Laplace transformation of e raised to 80, what it is? What it is? Forgotten. 1 upon s Laplace, minus yes, 1 upon s minus a. इतनी 1 जल्दी upon s भूलोगे तो minus कैसे a. चलेगा? And next क्या होता है, Laplace transformation of e raised to minus 80 will be 1 upon s plus a. Next we saw Laplace of sin 80. What it is? A upon A s upon square s plus minus a square. a square. Laplace of cos 80. S upon s S square plus a square. And Laplace of hyperbolic sin 80. A upon s square minus a square. Yes. So see difference देखो बस, और ये जो भी आप लॉजिक से याद रख सकते हो वो लॉजिक आप इधर अप्लाई कर सकते हो. तो ये हो जाएगा s upon s square minus a square. Okay. So एक और फंक्शन है स्टूडेंट्स that we will discuss in the next class. Okay, t raised to n. So you can just note down the formula for the same. The formula for t raised to n is s raised to n upon gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1. And gamma of n plus होता है n factorial. So just इसको ये formula कहाँ से आता है, कैसे आता है, that I'll explain in the next class. जैसे for example, if I want to know Laplace transformation of t square, अगर ये इंटीजर है, पावर अगर इंटीजर है तो आंसर क्या लिखोगे, 2 factorial upon s raised to 3. समझ में आ रहा है फॉर्मूला क्या, अगर इधर n है तो क्या होता है फॉर्मूला n factorial upon s raised to n plus 1. तो इधर पावर कितना था 2, तो 2 factorial upon s raised to 2 plus 1 कितना जगह 3. What is Laplace transformation of t raised to 5? 5 factorial upon s upon s 6, correct. Laplace transformation of t raised to 3. 3 factorial upon s raised to 4. But we can also calculate Laplace transformation of t raised to half. So ये टाइम पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, बिकॉज ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, क्या लॉजिक है उसका, जब इंटीजर वैल्यू होगा पावर में, राइट. नो, आप फैक्टोरियल फ्रैक्शंस का नहीं निकालते हो, इंटीजर वैल्यूज का निकालते हो, राइट. सो वो इंटीजर वाला, अभी ये हाफ होगा, अभी रेस टू हाफ हो गया, तो इसको क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, गामा हो, ये गामा क्या होता है वो सब आप पढ़ोगे यूनिट 5 में. सो ये गामा, ये आपका n हो गया +1 अपॉन s raised to n plus 1. समझ में आ रहा है कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा गामा 3/2 अपॉन s raised to 3/2. ओके, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास. सर डेरिवेशन भी देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आता है.
So till then, you all can take the screenshot of this formulae, and then we'll see derivation of t raised to n in the next class, and we'll begin with the properties of Laplace transformation. So that's it for the day.